Jai Hind students. In this session we will discuss how a galvanometer is converted into an ammeter and a voltmeter. Let us discuss first about conversion of a galvanometer into an ammeter. We have discussed about galvanometer in which a coil is suspended or pivoted between two concave strong magnetic poles. This is the coil. First of all, let's see why a galvanometer cannot be used to measure the current directly. Because if you want to use a galvanometer to measure the current in any circuit, it should be connected in series. If a galvanometer is connected in series to any circuit, what will happen? There are two reasons due to which we cannot use the galvanometer directly to measure the current. First is, it is very sensitive. For a current of microampere, it can give us a full scale deflection. Then, because of high resistance of coil of galvanometer, if it is connected directly in series to any circuit, it will consume more current. Therefore, it will not give us the right value of current. That is why first the galvanometer is converted into an ammeter. What is an ammeter? An ammeter is a device which measures the current in the circuit. तो यहाँ पर ये कॉनकेव पोल्स के बीच में एक कॉइल है. अब चूंकि अगर हम एक अमीटर की बात करते हैं तो अमीटर को हम किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं. तो सीरीज में जोड़ते हैं इसका मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए. जब इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तभी ये उसके करंट को, सर्किट के करंट को अफेक्ट नहीं करेगा. इसी वजह से कॉइल के पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया जाता है, लो रेजिस्टेंस का शंट जोड़ दिया जाता है. तो जब एक लो रेजिस्टेंस का शंट कॉइल के पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? मान लेते हैं कि करंट आई इसको मिल रहा है जिसमें से करंट आई जी गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है और करंट आई एस शंट से पास हो रहा है. अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है. Therefore, potential difference between the points A and B, VA minus VB equals A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल के लिए भी होगा और जो शंट हमने इसके पैरेलल में लगाया है उसके लिए भी वही होगा, सिमिलर होगा, एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर. दैट इज व्हाई VA minus VB equals IgG. Ig is supposed to be the current flowing through the galvanometer equals ISS or IgG equals I minus Ig into S. Can we write this? I is the main current entering in the galvanometer at point E. It is dividing into two parts. Ig is flowing through the coil of the galvanometer and Is is the amount of current flowing through the shunt, isn't it? Therefore, Is equals to I minus Ig. If we apply Kirchhoff's junction rule over here, we can say that I equals Ig plus Is. Therefore, Is equals I minus Ig. Therefore, S equals IgG upon I minus Ig. Clear? According to this, if a shunt
as is connected parallel to coil of the galvanometer, it will convert the galvanometer into an ammeter of range 0 to I एम्पियर। तो ये जो एस है शंट इसके पैरेलल में हमने लगाया है, इसकी वैल्यू को चेंज करके हम जो अमीटर बना रहे हैं उसकी रेंज को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। द गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर, वी हैव जस्ट यूज्ड दिस फॉर कन्वर्टिंग इनटू एन अमीटर। तो यहाँ भी कॉनकेव स्ट्रॉन्ग पोल्स के बीच में एक कॉइल है, पिवोटेड है, स्केल लगा हुआ है, सस्पेंडेड भी हो सकती है। तो यहाँ पर पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर ही हम यूज़ करेंगे। तो जब हम एक वोल्टमीटर की बात करते हैं तो वोल्टमीटर क्या करता है, सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वोल्ट में। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। इस वजह से जब हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल की सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस जो हमने ऐड किया है वो कैपिटल आर। क्लियर? करंट आई एंटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, देन high resistance and coil of the galvanometer, they are connected in series. Therefore, potential difference between points A and B, if it is denoted by V, then V equals Ig R plus G. Isn't it? Where what is capital R? This is the high resistance which is connected in series to the coil of the galvanometer. And what is capital G? This is resistance of coil of the galvanometer. Or V equals IGR plus IGG. Therefore, IGR equals V minus IGG, or R equals V upon Ig minus G. Can we write this? In this way, if we connect high resistance R in series to the coil of the galvanometer, it converts the galvanometer into a voltmeter of रेंज 0 to V वोल्ट। तो यहाँ पर R की वैल्यू को हम चेंज करके जैसा हमें वोल्टमीटर चाहिए उस रेंज का वोल्टमीटर हम बना सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जब हम एक अमीटर की बात करते हैं तो अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर की बात करते हैं तो वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो जब एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलेंगे तो जिस तरह से अमीटर जोड़ा जाता है उसका उल्टा शंट के साथ में करेंगे। उसका उल्टा शंट के साथ में करेंगे से मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि एक अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का शंट ऐड करेंगे। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस शंट ऐड करने से वो अमीटर में बदल जाएगा। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना है, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देना है। तो अमीटर सीरीज में जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप लो रेजिस्टेंस शंट लगाओगे, अमीटर में बदल जाएगा। वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड करने से वो वोल्टमीटर में बदल जाएगा। छोटी सी चीजें हैं, आपको याद रखना है। गॉट इट?